Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In the lectures of hypertension, we have discussed JNC 7 guidelines. But now JNC 8 is also published and it is available for the clinicians to get the guidance for the treatment of hypertension. So what are the different changes recommended by JNC 8 and why these changes are recommended, that we will discuss in this paper, which is published by American Heart Association and American Stroke Association as a contemporary review. So now US Hypertension Management Guidelines, a review of the recent, past and recommendation for the future. In general, if we talk about the hypertension affects around 29% of the US adult population, an estimated 72 million people with a prevalence of more than 65% in person older than 60 years. तो ऑलमोस्ट यही सिचुएशन शायद हमारे यहाँ भी होगी कि 29%, 25 to 40% के दरमियान हमारे यहाँ भी पॉपुलेशन होगी जो कि पाकिस्तान में जो हाइपरटेंसिव होगी, और जो मोर देन 60 इयर्स हैं उसमें ज़्यादा प्रेवलेंस होगी. लेकिन ये कि हमारे पास क्योंकि इस तरह का डेटा नहीं है, दैट इज़ वाई वी कैन नॉट श्योर अबाउट इट. इट इज़ an important risk factor for myocardial infarction, heart failure, stroke and cardiovascular disease. इस पर हम हाइपरटेंशन में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट फेलियर, सेरेब्रल स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और इसके अलावा और भी इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं. एंड अकाउंटिंग फॉर 41% ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डेथ्स, यानी कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डेथ्स जो हैं प्राइमरीली और अराउंड 41% जो है तकरीबन दे आर बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, यानी उसी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से होती हैं. इंडीड देयर इज़ ए नोन ग्रेडेड रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर एंड द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़. एक ग्रेडेड रिलेशनशिप मौजूद है. ब्लड प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा, रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी बढ़ता चला जाएगा. स्टार्टिंग फ्रॉम 115 mmHg to 75 mmHg, यानी 115 mmHg systolic blood pressure and 75 mmHg of diastolic blood pressure. Based on the observational data, an increase in blood pressure of 20 mmHg systolic or 10 mmHg of diastolic is associated with a doubling the risk of cardiovascular disease death regardless of age. यानी 20 mmHg increase होना systolic और 10 mmHg increase होना diastolic, this will increases the risk of cardiovascular related death by 2 times और double जो है वो उसका risk कर देगा. Further, hypertension in middle age is known to increase the risk of chronic kidney disease and dementia in the later life. दूसरी चीज़ ये कि hypertension अगर middle age में हो जाए तो it also increases the risk of chronic kidney disease and dementia in the later life. An important issue given the aging demographic in Western societies. Finally, despite the fact that the BP recognition and control are improving, it is concerning that nearly half of the hypertensive population remains suboptimally controlled. कि ये बात मालूम होने के बावजूद भी कि हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा प्रिवेल भी कर रहा है, इसकी डायग्नोसिस भी अर्ली स्टेज पे हो जाती है, नोन भी होता है, लेकिन इसकी जो ऑप्टिमल कंट्रोल है वो नहीं है बल्कि सब ऑप्टिमली कंट्रोल्ड है. With the 2003 Joint National Committee 7th report, यानी JNC 7, becoming increasingly outdated, and 2011 Institute of Medicine report calling for high quality evidence based guideline, यानी फिर उसने कहा कि 2003 में जो ये JNC 7 पब्लिश हुई थी अब ये आउटडेटेड हो गई है और अब नई गाइडलाइन की ज़रूरत है. So 8 Joint National Committee or JNC 8 was initially appointed to create an updated treatment guideline for the hypertension under the auspices of National Institute of Health. तो नेशनल इंस्टीट्यूट के तहत जो है वो ये JNC 8 गाइडलाइंस की डेवलपमेंट के लिए जो पैनल ऑफ ग्रुप अपॉइंट किया गया और एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स अपॉइंट किया गया. Then, although the NIH ultimately withdrew from the guideline development process at a late stage in the development of JNC 8, the panel decided nonetheless to publish their recommendation independently. बाद में NIH ने कहा कि नहीं, मैं इस जो इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ, उसने कहा कि मैं जो इस गाइडलाइन को जो है वो फर्दर जो है इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, लेकिन जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट था दे डिसाइडेड दैट दे विल स्टिल पब्लिश देयर रिकमेंडेशन इंडिपेंडेंटली.
अच्छा, अब उसके बाद देन व्हाट हैपेंड, द पैनल एम्ड आंसर 3 क्वेश्चन। पैनल ने जो है बेसिकली 3 क्वेश्चंस टारगेट किए हैं टू गेट द आंसर। डज इनिशिएटिंग एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट एट स्पेसिफिक बीपी थ्रेशोल्ड इम्प्रूव द हेल्थ आउटकम्स? एक तो ये क्वेश्चन था कि इनिशिएटिंग एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट एट स्पेसिफिक ब्लड प्रेशर थ्रेशोल्ड इम्प्रूव हेल्थ आउटकम, क्या हेल्थ आउटकम इम्प्रूव हो रहा है इनिशिएट करने का? दूसरा, डज ट्रीटमेंट विद एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी टू ए स्पेसिफिक गोल इम्प्रूव हेल्थ आउटकम? और अगर जो आप टारगेट या गोल हम रख रहे हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, क्या वो अचीव करने से तो कोई बेटर इम्प्रूव हेल्थ आउटकम हो रहा है या नहीं हो रहा है? आर देयर डिफरेंसेस इन द बेनिफिट एंड हार्म बिटवीन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और ड्रग्स क्लासेस ऑन ए स्पेसिफिक हेल्थ आउटकम्स? और व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट ड्रग्स एंड ड्रग क्लासेस, व्हाट आर देयर बेनिफिट्स एंड हार्म्स among them, or their comparison for the benefits and harms on the health outcome? ये 3 मेन क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स चाहिए थे। द कमेटी फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन लार्ज रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स एज सपोर्टिंग एविडेंस। और जो कमेटी थी उसने ये डिसाइड किया कि हम जो लार्ज रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होंगे, यानी जिनकी वैलिडिटी ज़्यादा अच्छी होगी, इंटरनल वैलिडिटी एज वेल एज एक्सटर्नल वैलिडिटी, दे विल बी यूज फॉर decision making. Although 5 of the 9 recommendation in the final report were ultimately based on the expert opinion, लेकिन उसमें से 5 जो 9 रिकमेंडेशन दी गई JNC 8 में, उसमें से 5 रिकमेंडेशन ऐसी थी जो कि लार्ज रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स ओपिनियन की बेस पे थी। पार्टली in response to JNC 8, the American College of Cardiology and American Heart Association are now in the process of developing official hypertension guidelines. तो इन्होंने जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, दे हैव ऑल्सो डिसाइडेड दैट दे शुड डेवलप देयर ओन गाइडलाइंस। इन दिस रिव्यू वी डिस्कस द बेसिस ऑफ ईच रिकमेंडेशन फ्रॉम JNC 8 पैनल। ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च पेपर या जो कंटेम्प्रेरी रिव्यू है, वो जो है हम सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं कि JNC 8 क्या रिकमेंड कर रही है। Provide additional insight and compare these recommendations with guidelines from other professional societies to generate suggestion for the new AHA ACC Hypertension Guideline Committee। तो इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो ये रिकमेंडेशन है उनको डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे the different other professional societies, those already provided different guidelines, उन्होंने जो गाइडलाइंस इसके अलावा जो हैं जो प्रोवाइड की गई हैं उनसे कंपेयर करेंगे, और ये सजेशन दी जाएंगी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी को कि ये रिकमेंडेशन है, अगर ये जो JNC 7, JNC 8 और जो दूसरी प्रोफेशनल सोसाइटीज़ की गाइडलाइन है उसमें जो चीज़ रह गई हैं उसको एड्रेस अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA और ACC गाइडलाइंस उसको जो है वो एड्रेस करें, और वो जो कमी रह गई हैं, द शॉर्ट कमिंग्स विच आर स्टिल अवेलेबल इन द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस, दे शुड ओवरकम दैट। नाउ इन JNC 8 व्हाट इज रिकमेंडेशन 1? सबसे पहली रिकमेंडेशन क्या है? इन द जनरल पॉपुलेशन एजेड 60 years or above 60 years, initial pharmacologic treatment to lower blood pressure at systolic blood pressure greater than or equal to 150 mmHg or diastolic blood pressure 90 or greater than 90 mmHg to treat a goal of systolic blood pressure to less than 150 mg and goal of diastolic BP less than 90 mmHg। इन जनरल पॉपुलेशन जिसकी एज 60 ईयर्स या इससे ज़्यादा हो, उसका टारगेट ये रखा गया कि हम उसको हाइपरटेंसिव जब कहेंगे जब उसका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक हो 150 से ज़्यादा या डायस्टोलिक हो 90 से ज़्यादा, तब वो हाइपरटेंसिव होगा, तो उसको ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और गोल ये होगा कि उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रखा जाए लेस देन 150 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रखा जाए लेस देन 90 mmHg। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें JNC 7 से, तो ये वाला जो 90 वाला है ये तो ऐसे ही था, लेकिन ये जो था डायसिस्टोलिक, इसकी रिकमेंडेशन जो JNC 7 में थी वो एक तो रिगार्डलेस ऑफ एज थी, ये नहीं थी कि अबव 60 ईयर्स में जो है वो लेस देन 150, वो वहाँ पे थी 1 लेस देन 140। यानी जो JNC 7 थी उसमें रिकमेंडेशन ये थी कि जनरल पॉपुलेशन में अगर ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो तो उसका ब्लड प्रेशर टारगेट गोल क्या था? सिस्टोलिक शुड बी लेस देन 140 और डायस्टोलिक शुड बी लेस देन 90 एंड रिगार्डलेस ऑफ दिस एज।
लेकिन JNC 7 की रिकमेंडेशन ये है कि इफ़ द पेशेंट इज़ 60 ईयर्स और अबव 60 ईयर्स तो फिर उसका ब्लड प्रेशर हाई कंसिडर किया जाएगा अगर उसका सिस्टोलिक अबव 150 है या डायस्टोलिक अबव 90 है। और इसी वजह से टारगेट क्या है और गोल क्या है कि सिस्टोलिक बीपी शुड ब्रिंग बैक टू लेस देन 150 mmHg एंड डायस्टोलिक लेस देन 90 mmHg। अब ये रिकमेंडेशन की रीजंस क्या है, ये आखिर क्यों ऐसा रिकमेंड किया गया, इसके पीछे कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ के रीजंस हैं। द फर्स्ट रिकमेंडेशन इज बेस्ड ऑन सेवरल randomized control trials or clinical trials evaluating treatment of systolic blood pressure to less than 140 mmHg versus a more liberal target 140 to 160 mmHg in patient above 60 years of age। तो कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ ऐसी चेक की गई, सेवरल क्लिनिकल स्टडीज़, जिसमें ये देखा गया कि अगर लेस देन 140 रखा जाए और इन बिटवीन 140 टू 60 रखा जाए इन दोज पेशेंट्स हु आर अबव 65 ईयर्स, तो क्या हुआ। इन Japanese trial to assess optimal systolic blood pressure in the elderly hypertensive patient, जिसका नाम स्टडी का नाम था JETOS, 4,418 patients between the age of 65 to 85 year were randomized to systolic BP treatment goal less than 140 mmHg versus 140 to less than 160 mmHg। तो इसमें दो ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप को जो ये जैपनीज स्टडी थी ब्लड प्रेशर जिनकी एज थी 65 से 85 और उसमें गोल रखा गया एक ग्रुप का कि उनको ब्लड प्रेशर रखा जाए लेस देन 140 और दूसरा ग्रुप ऐसा था जिसका ब्लड प्रेशर रखा जाए 140 से 160 के दरमियान में, यानी लेस देन 160। Despite the fact that the intensive treatment group achieved significantly blood pressure level 136 by 75 versus 146 by 78, यानी जो एक ग्रुप था ये जो लेस देन 140 था, इसका जो अचीवमेंट थी ट्रीटमेंट गोल की ब्लड प्रेशर की वो 136 by 75 रही और ये वाला जो था 140 से लेस देन 160 का, इसका ब्लड प्रेशर रहा 146 by 78 mmHg। The primary endpoint of the combined cardiovascular disease renal failure did not differ significantly between the two groups। और इन दोनों में ये देखा गया जिनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 140 रहा और जिनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 146 रहा, यानी 140 से ज़्यादा था बट लेस देन 160 था, दोनों में कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिजीज़ या कोई रीनल फेलियर उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 140 से ज़्यादा भी है ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक तो उससे कोई ख़ास फर्क मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी पे नहीं पड़ेगा। अच्छा, वन लिमिटेशन ऑफ दिस ट्रायल, एक लिमिटेशन थी, हाउएवर, इज दैट इट वाज ओनली पावर टू टारगेट द 40% रिलेटिव रिस्क रिडक्शन और ऑन एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन ऑफ 5 to 3% in the primary endpoint, while 10 or 3 mmHg 10 by 3 mmHg reduction in blood pressure is substantial and may not be sufficient to achieve 40% reduction in cardiovascular disease और renal failure। ये इसकी शॉर्टकमिंग है कुछ रिलेटिव रिस्क रिडक्शन के हवाले से कि यानी ये कि एक तो ये कि इसकी स्टडी की पावर नहीं थी, यानी सैम्पल साइज छोटा था, तो इसकी वजह से ये रिजल्ट्स जो थे वो सैम्पल साइज छोटे होने की वजह से ये रिजल्ट्स जो थे थोड़े से डाउटफुल है। दीज पेशेंट्स वर फॉलोड ओनली फॉर 2 years। The main treatment drug was long-acting, like calcium channel blockers. Diuretics used widely, first line along with calcium channel blockers in most professional society guidelines, were used only in 12% of the patient। अच्छा, दूसरा ड्रॉबैक इसमें यह था और ड्रॉबैक ये थे कि एक तो इसका ड्यूरेशन सिर्फ 2 years का था, जबकि जो एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म चलता है। दूसरी चीज़ ये कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायरेटिक्स विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि ज़्यादातर गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं वो इस स्टडी में सिर्फ 12% ऑफ द पेशेंट यूज़ कर रहे थे, तो जो है रियल लाइफ सिचुएशन जो थी वो मैच नहीं करती थी। वाइल, अब अगर हम इस मज़ीद बात करें, वाइल नॉट रीचिंग द स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये अंडर पावर थी स्टडी इसकी, यानी स्टडी का सैम्पल साइज छोटा था, जो जैसे कि यहाँ ये कह रहे हैं कि पावर नहीं थी इसकी स्टडी की। सब ग्रुप एनालिसिस सजेस्टेड दैट द इंटेंसिव ट्रीटमेंट goal may be beneficial in patient less than 75 year old while adopting more liberal strategy
may be safer in those 75 years or more than 75 years old. लिहाजा उन्होंने कहा कि जो इंटेंसिव ट्रीटमेंट गोल है यानी लेस देन 140 का जो टारगेट है वो रखा जाए उन पेशेंट्स के लिए जो कि लेस देन 75 ईयर्स है, और जो 140 से अगर ज़्यादा है और 160 से कम है तो वो उन पेशेंट्स के लिए रखा जाए जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। ये जो है इस स्टडी का कंक्लूजन है। लेकिन एक और स्टडी जो है द वैलिश स्टडी, वेलसार्टेन इन एल्डरली आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ट्रायल examined a slightly older hypertensive patient, and the number of patients are 3,260 with mean age of 76 years, to a strict less than 140 mmHg or moderate 140 to less than 150 mmHg, and the systolic blood pressure control strategy with valsartan as the first line drug, और valsartan जो थी वो फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पर इस्तेमाल की गई। There was non-significant trend towards the primary outcome of composite cardiovascular disease. Composite का मतलब हुआ हार्ट फेलियर, कार्डियक एरिथमिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी जितने भी हार्ट रिलेटेड इशू हैं, एंड रीनल डिजीज विद द इंटेंसिव ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी। मीन्स दैट कि जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर लेस देन 140 रखा गया वो, और जिनका 140 से लेके 150 के दरमियान में रखा गया, दोनों में जो आउटकम था कि यानी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना एनी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और रीनल डिजीज़ वो दोनों की बराबर थी, और दोनों में नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस था एट 3 ईयर फॉलोअप विच इज़ 0.38, यानी अगर ये पी वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो कि लेस देन 0.05 होती तो सिग्निफिकेंट होती, लेकिन क्योंकि ये 0.05 से ज़्यादा है 0.38 है, तो दोनों में ग्रुप में यानी जिनको लेस देन 140 रखा गया और जिसका 140 से 150 रखा गया, दोनों में सिमिलर नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हुए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के और रीनल डिजीज़ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे लेस देन 140 रखें या लेस देन 150 रखें, इसमें जो इश्यूज़ हैं यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या रीनल डिजीज़ वो दोनों के बराबर ही होंगे, यानी कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा, और जो एंड पॉइंट होगा वो दोनों का एक ही तरह से अचीव होगा। लिहाजा अगर हम ये टारगेट रखें लेस देन 150 उन पेशेंट्स में जो कि एल्डर एज वाले हैं, एल्डरली हैं, यानी अब 65 ईयर्स वाले हैं, वो मुनासिब होगा। ज़्यादा हमें इंटेंसिव टारगेट रखने की ज़रूरत नहीं है। An important consideration is that Walish was significantly underpowered. इसमें भी underpowered है यानी सैम्पल साइज छोटा था, with substantially few primary endpoint events than predicted. While Walish was conducted in Japan, most guidelines for the elderly, African Americans or European would suggest that angiotensin II receptor blockers are second line to the diuretic or calcium channel blocker फॉर कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर, जबकि ज़्यादातर गाइडलाइंस जो कि अफ्रीकन अमेरिकन या यूरोपियन ओरिजिन की हैं वो जो वेलसार्टेन यहाँ पे यूज़ की गई है उसको फर्स्ट लाइन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते बल्कि सेकंड लाइन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इफ़ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स आर फेल लाइक डायूरेटिक्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इन बोथ ऑफ दीज ट्रायल्स द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज वर वेल टॉलरेटेड एंड फ्यू एडवर्स इवेंट्स अकर। तो ये इनका अच्छा पॉइंट है। वन ट्रायल not included in the JNC8 analysis was the fever study Falodipine event reduction, which enrolled 9,800 Chinese patients with age of 50 to 79 years with hypertension and at least one other cardiovascular risk factor for the comparison of diuretics monotherapy versus diuretics plus calcium channel blocker। यानी डायरेटिक को यूज़ किया गया और डायरेटिक्स प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोनों देकर देखा गया इन द पेशेंट्स हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो कि 50 से 79 ईयर्स के थे। ऑफ नोट दिस पेशेंट पॉपुलेशन हैड हायर रेट ऑफ प्रायर स्ट्रोक ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक सजेस्टिंग हायर बेस लाइन रिस्क फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। इसमें जो पेशेंट्स थे उनको पुरानी हिस्ट्री थी किस चीज़ की, स्ट्रोक की, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक की और बेस लाइन रिस्क फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की। That is despite the fact that the other baseline characters such as diabetes, previous history of MI and incidences of cardiovascular events were similar in a range to those with other studies। बाकी जो issues थे डायबिटीज़, previous history of myocardial infarction और cardiovascular events वो similar थे जैसा कि दूसरी studies में होते हैं।
Unlike JETOs, fever did not meet the JNC 8 committee criteria for inclusion in their deliberation. तो इन्होंने JNC 8 वालों ने इसको जो है वो कंसिडर नहीं किया, इस स्टडी को रिकमेंडेशन के लिए अपने पैनल में डिस्कस नहीं किया. While trials included in JNC 8 evaluated different blood pressure goal, fever did not have a specific target but used two different treatment strategies that were clearly designed to have more intensive BP control versus less intensive BP control. तो इन्होंने क्या किया, मोर इंटेंसिव बीपी कंट्रोल ट्रीटमेंट आर्म एंड लेस इंटेंसिव बीपी कंट्रोल यानी प्लेसिबो आर्म. एंड प्लेसिबो एज वी नो दिस इज ए डमी ड्रग, देयर इज नो ड्रग. द एक्सक्लूजन ऑफ हाई क्वालिटी randomized evidence evaluating different BP treatment and the limited focus solely on trial perspective pre-specified BP target are significantly limitation of GNC 8 that likely will be remedied by the next AHA ACC कमेटी. तो जो बीपी के टारगेट हैं वो भी जो है बीटी ट्रीटमेंट जिसके गोल जो है वो सिग्निफिकेंट लिमिटेशन जो है वो JNC 8 की हैं कि जिसको उन्होंने फोकस यानी बीपी के टारगेट को उन्होंने स्पेसिफिकली फोकस नहीं किया, जो कि शायद AHA या ACC की कमेटी जिसको सोलिडली फोकस करेगी. तो ये जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो की जाएगी. नाउ बोथ groups in the fever had reduction in blood pressure and BP falling from 154 by 91 to 137 by 83 in the diuretic plus calcium channel blocker intensive treatment group and from 154 by 91 to 143 by 85 mmHg in diuretic alone control group. तो ये यानी ये डिफरेंस रहा कि वो जो कि डायरेटिक्स प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहे थे उनका ब्लड प्रेशर 154 बाई 91 से कम होकर 137 बाई 83 रहा, और जो कि कंट्रोल ग्रुप में थे जो सिर्फ डायरेटिक्स ले रहे थे उनका ब्लड प्रेशर 154 बाई 91 से 143 बाई 85 के दरमियान में आ गया. फेटल एंड नॉन फेटल स्ट्रोक वॉज रिड्यूस्ड बाई 27% इन द इंटेंसिव ट्रीटमेंट ग्रुप. ठीक है, जो कि सिग्निफिकेंट है, यानी फेटल एंड नॉन फेटल स्ट्रोक जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बाय इंटेंसिव ट्रीटमेंट ग्रुप, यानी जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायरेटिक दोनों ले रहे थे. वाइल कार्डिक इवेंट्स एंड ऑल कॉज मॉर्टेलिटी वर लोअर्ड बाय 37% एंड अगेन इट इज सिग्निफिकेंट रिस्पेक्टिवली, यानी कार्डिक इवेंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बाय इंटेंसिव ट्रीटमेंट, ऑल कॉज मॉर्टेलिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बाय इंटेंसिव ट्रीटमेंट यानी डायरेटिक प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोनों. The average age of fever patient was 62 years. Thus, according to JNC 8 recommendation, the majority of these patients would not receive any additional therapy to achieve systolic blood pressure less than 140 mmHg. So, in such, these patients may lose the additional stroke and cardiovascular disease benefit seen in the fever. However, given in that there was no subgroup analysis of patients above 60 years old, the magnitude of benefit in this age group is unclear in this fever study. लेकिन ओवरऑल जो था वो जो पेशेंट्स थे उसमें ये देखा गया कि रिगार्डलेस ऑफ एज कि वो पेशेंट जो कि डायरेटिक्स प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहे थे उसमें सिग्निफिकेंटली जो है वो रिड्यूस हुआ फेटल एंड नॉन फेटल स्ट्रोक एंड कार्डिक इवेंट्स एंड ऑल कॉज मॉर्टेलिटी. Now, more evidence to support lower target in US adult comes from the recently completed systolic blood pressure intervention trial or SPRINT trial. ये trial क्या कहता है? This study randomized 9,361 non-diabetic adult 50 years or above 50 years old with no prior stroke to a standard group with target of systolic blood pressure of less than 140 mmHg and intensive group with target of systolic blood pressure less than 120 mmHg. तो इसमें जो एविडेंस था वो ये था कि स्प्रिंट ट्रायल में कि स्टडी एक जैसे रेंडमाइज किया जो पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक एडल्ट अबव 50 ईयर्स जिसकी हिस्ट्री थी नो प्रायर स्ट्रोक, ये हिस्ट्री नहीं हो, और टारगेट ब्लड प्रेशर लेस देन 140 mmHg और इंटेंसिव टारगेट विथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 mmHg.
तो ये दो टारगेट रखे गए। अच्छा, उसके बाद स्प्रिंट वॉज डिजाइन टू लुक फॉर ए बेनिफिट ऑफ इंटेंसिव ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट इन दोज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग हार्ट फेलियर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज with an average age of 68 years old and Framingham 10-year cardiovascular disease risk score of 20%। जो इंटेंसिव ट्रीटमेंट वाले जो पेशेंट थे वो पेशेंट्स थे जिनको हाई रिस्क था हार्ट फेलियर का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के का रिस्क था, एवरेज एज 60 ईयर्स थी, और फ्रेमिंगम रिस्क स्कोर जो 10 ईयर्स का था वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का वो 20% था। द इंडिपेंडेंट डेटा and Safety Monitoring Board recently advised the National Institute of Health to stop the study early due to significantly reduced relative rate of cardiovascular disease related death, जो कि significant हुआ था कंपेयर टू अदर ग्रुप। तो significantly यानी 43% वर्सेस 25% इवेंट हुए, यानी जो इंटेंसिव ग्रुप थे उसमें डेथ जो थी वो बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड हुई CVD रिलेटेड, लिहाजा इस स्टडी को स्टॉप कर दिया गया बीच में। दिस रिडक्शन इन द CVD इवेंट केम एट द कॉस्ट ऑफ हायर रेट ऑफ हाइपोटेंशन, एक्यूट किडनी इंजरी, सिनकोप एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस। तो ये जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट हुए जो दूसरे ग्रुप में थे वो एट द कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ हाइपोटेंशन, एक्यूट किडनी इंजरी यानी किडनी डिजीज़ भी हुई उनको, और सिनकोप भी हुआ, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस भी हुआ। The results from the sprint contradict the recommendation of JNC 8 and may support even lower systolic blood pressure target for the consideration of new AHA ACC guidelines committee। तो अब मसला ये है कि वो जो इंटेंसिव ट्रीटमेंट ले रहे थे जिनका ब्लड प्रेशर बहुत कम रखा गया था उनमें ऑल्दो एक्यूट किडनी इंजरी हुई, सिनकोप हुआ, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हुई, लेकिन उसमें ये जो CVD रिलेटेड डेथ थी वो 25% थी कंपेयर टू दोज जिनका ब्लड प्रेशर टारगेट ज़्यादा रखा गया था, यानी लेस देन 140, यानी लेस देन 120 रखने में ये मसला हो रहा है कि लो ब्लड प्रेशर रह रहा है, एक्यूट किडनी इंजरी हो रही है, सिनकोप हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो रहा है, और जिनका लेस देन 140 रख रहे हैं उसमें कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डेथ रिपोर्ट हो रही हैं जो कि सिग्निफिकेंटली हायर है। तो अब इससे तो ये पता चल रहा है कि ब्लड प्रेशर लोअर रखा जाए तो डेथ के चांसेस कम है, लेकिन एक्यूट किडनी इंजरी, सिनकोप और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इसमें बहरहाल इशू है, जैसे ये इसको जो है वो AHA ACC गाइडलाइन कमेटी जो होगी ज़रूर अंडर कंसिडर रखेगी। इसके बाद आइए, ऑल्दो द JNC 8 ब्लड प्रेशर टारगेट ऑफ लेस देन 150/90 mmHg इज रिकमेंडेड फॉर दोज ओल्डर देन 60 ईयर्स। एविडेंस फॉर दिस टारगेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर दोज अबव 80 ईयर्स। इसका जो टारगेट है वो अबव 80 ईयर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कि लेस देन 150/90 इस एज ग्रुप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाईवेट स्टडी विच इज़ हाइपरटेंशन एंड वेरी एल्डरली शोड ए बेनिफिट टू ट्रीटिंग हाइपरटेंशन अबव 85 ईयर्स ओल्ड टू एन एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 144 mmHg, और ये स्टडी हुई है 3845 हाइपरटेंसिव पेशेंट पे। अच्छा, these patients initially had systolic BP above 160 mmHg at the baseline, यानी जब स्टार्ट की उस वक्त above से 160 था सिस्टोलिक BP, were treated with indapamide जो कि एक डायरेटिक है, एंड पेरेंड्रोपिल जो कि पेरेंड्रोपिल क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एज नीडेड अचीव। पेरेंड्रोपिल जो है वो ACE इनहिबिटर है, द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 150/80 mmHg। दिस ट्रायल वॉज स्टॉप अर्ली फॉर mortality benefit with outcome including 39% reduction in fatal stroke, 29% reduction in death from any cause and 64% reduction in heart failure rate in the treatment group। इस स्टडी को भी जो है वो स्टॉप कर दिया गया ड्यू टू अर्ली मॉर्टेलिटी बेनिफिट, यानी ये मॉर्टेलिटी बेनिफिट शुरू में ही पता चल गए कि रिडक्शन इन फेटल स्ट्रोक 39% रहा, 29% reduction in death from any cause, 64% reduction in heart failure rate in the treatment group. The HIVET trial, frail adult means above 80 years were excluded from the trial, but this suggests that otherwise robust adult more than 80 years old have significant reduction in mortality and CVD outcome targeting systolic blood pressure less than 150
mHg। तो इससे ये सजेशन जो है वो हमें मिल रही है कि इफ़ द इंडिविजुअल इज़ अबव 80 ईयर्स ओल्ड, सो it significantly reduce the mortality and cardiovascular disease related outcome if we target the systolic blood pressure less than 150 mmHg. What is clear from HIVIT is whether further reduction in BP to lower threshold would have been beneficial in this sample. In pre-specified subgroup analysis of SPRINT trial, the reduction in CVD event and death in intensive treatment arm जो कि लेस देन 120 mmHg था स्प्रिंट में, इंक्लूडिंग द एज अबव 75 ईयर्स ओल्ड, जो था वो ये था कि यानी जो अब मसला ये कि क्या लेस देन 150 या उससे कम रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो अब अगर इन प्री स्पेसिफाइड सब ग्रुप एनालिसिस ऑफ स्प्रिंट ट्रायल द रिडक्शन इन CVD इवेंट एंड डेथ इन इंटेंसिव ट्रीटमेंट आर्म जो कि लेस देन 120 था, वहाँ पर भी देखा गया, लेकिन वहाँ पे वही एक्यूट किडनी इंजरी का मसला हो रहा था। Similarly, similar to HIVIT and SPRINT, avoided possibly frail adults by excluding residents of nursing homes or assisted living facilities. These results also impact the guideline committee. इसमें जो है वो कोशिश किया गया कि वेरी ओल्ड और फ्रेल पेशेंट्स को ना शामिल किया जाए, और जो है वो नर्सिंग होम्स में जो रहते थे उनको ना शामिल किया जाए, और जो रियल लाइफ जो इसके अलावा जो रेगुलर पेशेंट्स हैं उनको इस स्टडी में शामिल किया जाए। तो ये जो है यहाँ पर हम इस लेक्चर को, जो फर्स्ट लेक्चर है फॉर द डिस्कशन ऑफ JNC 8 एज वेल एज अदर गाइडलाइंस, आज हम इस फर्स्ट लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट हम यहाँ से पेज नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, और इस टेबल को हम जब टाइम आएगा तो वहाँ पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।